Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be starting a new video which will be on cardiovascular system. I hope this video will be helpful to you, and thank you so much for showing love for the previous videos. And today's lecture we will be discussing about the cardiovascular system. We will be discussing what is the anatomy of cardiovascular system and what are the functions of the cardiovascular system. So when we talk about the cardiovascular system is divided into, you can say, different parts, and when we say two main parts are there, one is the circulatory system and another one is the lymphatic system. So एक्चुअल में वेस्क्यूलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें लिम्फेटिक इंक्लूड होता है, अदरवाइज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो पर्टिकुलरली सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम बोलते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ द बॉडी which is responsible for the transportation of various nutrients, gases, waste products, etc. from one part of the body to another part of the body. And it consists of heart, which acts as a pump, and blood vessels through which the blood circulates, and the blood is responsible for carrying all those nutrients, gases and waste products, etc. from one place to another place. And when we say about the lymphatic system consists of lymph nodes, lymphatic vessels, and through those lymphatic vessels a colorless fluid runs which is known as lymph. And that lymph actually you can say carry waste products, and it consists of antibodies as well. So it is a part of our immune system and helps in fighting the infections, etc. And when we talk about the two systems, the circulatory system and the lymphatic system, they communicate with each other and help in transportation of various substances from one part of the body to another part of the body. So कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम उस वाले पोर्शन को मेनली कहते हैं जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होती है, जिसमें हम हार्ट की बात करेंगे जो कि एक्ट करता है एज अ पंप, एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, और ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं. और अगर बात की जाए, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. हमारी जो सर्कुलेशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अनदर वन इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इट इज एक्चुअली द पोर्शन फ्रॉम, you can say, right ventricle up to the left atrium. So in this case the blood goes into the pulmonary artery which carries the blood to lungs, and then from the lungs the blood is brought back by pulmonary veins. So इस केस में अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की जाए तो वहां पर पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है और उसको लेके लंग्स तक जाती है. फिर लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन्स आती हैं जो वहां से ब्लड को वापस लेके आती है और लेफ्ट एट्रियम में उसको छोड़ देते हैं. तो इस वाले पोर्शन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. दूसरा जो सर्कुलेशन होता है हमारे पास उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है जहां से ब्लड आयोटा में पुश होता है. फिर आगे जाके वो आयोटा जो है डिवाइड एंड सब डिवाइड करती है और फाइनली जाके हर एक टिश्यू के पास ब्लड पहुंचता है, और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिफरेंट वेन्स के थ्रू पहुंच के फाइनली इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू फाइनली जाके हमारे राइट एट्रियम में आता है. तो ये वाला पोर्शन जो सर्कुलेशन का होता है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो सिस्टमिक सर्कुलेशन इज दैट पोर्शन फ्रॉम द आयोटा अप टू द, यू कैन से, राइट एट्रियम. सो दैट पोर्शन इज नोन एज द systemic circulation. So right side of the blood, you can say, heart pumps blood into the pulmonary circulation, and the left side of the heart pumps blood into the systemic circulation. So in this particular image you can understand the pulmonary circulation and the systemic circulation. इस इमेज में आपको समझ आ जाएगा. जो बीच में ये पोर्शन आपको दिख रहा है सर्कुलर पोर्शन, ये हमारा हार्ट होता है. इसमें जो ब्लूइश कलर का पोर्शन रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है, और जो रेड कलर का पोर्शन रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है. इसमें अगर आप देखोगे राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वहां से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ और फिर लंग्स से वापस आता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में. ये वाला जो है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. और सेकेंड की इसमें जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो ऑल बॉडी टिश्यूज से होते हुए फाइनली जाके दोबारा से राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचता है वापस, और इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे कि ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन. नाउ मूविंग अहेड, वी विल बी डिस्कसिंग how the blood flows through the heart.
Firstly, the deoxygenated blood is brought by superior vena cava and inferior vena cava and it's filled in the right atrium. तो जो right atrium होता है उसमें superior vena cava और inferior vena cava की मदद से blood आ जाता है और उसमें collect होता है. Then after that the blood moves into right ventricle through the tricuspid valve. फिर जो blood होता है right atrium से right ventricle में जाता है एक valve के through, एक opening के through जिसको हम कहते हैं tricuspid valve. Then after that it goes into the pulmonary artery. ठीक है, दो पल्मोनरी आर्टरी में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है जो कि जाता है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू. एंड फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड देन इट टेक्स द ब्लड टू द लंग्स. तो लंग्स में क्या होता है, वहां पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डिवाइड एंड सब डिवाइड होती है, फिर फाइनली जाके कैपिलरीज बनाती है. दोज कैपिलरीज आर इन कॉन्टैक्ट विद द एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पहुंचता है जो कि एक्सचेंज होके फिर ब्लड में पहुंच जाता है और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 4 पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में लेके आते हैं. तो जो 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं उसमें से 2 राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से निकलती हैं एंड दे ब्रिंग ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम द ब्लड इज पुश्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वैल्व व्हिच इज नोन एज द बाइकस्पिड वैल्व और माइट्रल वैल्व. सो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है. नाउ दिस ब्लड, बिकॉज दिस इज oxygenated blood, so it will go into the aorta. So in case of aorta we will be having an aortic valve which will be opened and the blood will be pushed into the aorta. So blood जो होता है oxygenated ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है और हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व एंड फिर देन आफ्टर दैट इट विल गो इनटू द आयोटा. ये आयोटा में जाता है एंड द आयोटा विल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी और इस तरीके से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है. अगर ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो हार्ट जो होता है ये पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर. द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स दैट कैन वेरी इन देयर स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शन. तो देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ आर्टरीज जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और साइज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. देयर कैन बी सेवरल वेन्स, देयर कैन बी सेवरल कैपिलरीज. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, देयर आर आर्टरीज, देयर आर आर्टरियोल्स, देयर आर कैपिलरीज, देयर आर वेन्यूल्स एंड देयर आर वेन्स. आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक करेक्ट डेफिनेशन हम नहीं बोल सकते. The better definition is these are the blood vessels that take blood away from the heart. So जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं. इसमें अगर देखा जाए पल्मोनरी आर्टरी को भी आप समझ सकते हो फिर, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है बहुत बार हम ये बोलते हैं दैट इट्स एक्सेप्शन, इट्स एन एक्सेप्शन जो कि आप बोल सकते हो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है रादर देन ऑक्सीजनेटेड. But when we talk about the pulmonary artery in context to this definition, जब हम इस definition के हिसाब से pulmonary artery को समझेंगे तो हमें ये समझ आता है कि जो pulmonary artery होती है वो blood को heart से दूर लेके जाती है, क्योंकि arteries का काम है blood को heart से दूर लेके जाना. So these are the blood vessels which transport the blood away from the heart. They can vary considerably in their size and their wall consists of 3 layers. इसके wall में 3 layers होते हैं. एक आता है tunica adventitia. Tunica adventitia is the outer layer. It is the fibrous layer which gives strength, or we can say they actually hold the arteries. Second one होता है tunica media which is the middle layer. It is mainly made up of smooth muscles and elastic tissue, जिसकी वजह से इसमें constriction and relaxation हो सकती है. vessels जो है constrict होते हैं, कभी कभी dilate होते हैं. इसके अलावा then there is tunica intima which is the inner lining. वो mainly squamous epithelium का बना होता है जिसको हम endothelium कहते हैं. अब स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है ये एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप होता है, तो उसी का बना होता है ये ट्यूनिका intima. So the tunica intima is the inner lining which is made up of squamous epithelium known as the endothelium. The tunica media is the middle layer which is mainly made up of smooth muscle and elastic tissue, and tunica adventitia is the outer layer which is made up of fibrous tissue mainly. When we talk about the you can say structure of the wall, in this image you can see the structure of an artery and on the right side you can see the structure of a vein. In case of both these particular vessels,
There is tunica adventitia, the outer layer, tunica media, the middle layer, and tunica intima, the internal layer. However, there are subtle variations, like in case of arteries, the tunica media is mainly muscular, but in case of veins, it's not having that much amount of muscles. And the amount of muscular and elastic tissue varies in case of arteries depending on their size. जैसे बड़ी arteries में ज्यादा मिलेगा and छोटी arteries में कम मिलेगा. We can say in large arteries, sometimes called as elastic arteries, the tunica media consists of more elastic tissue and less smooth muscle, क्योंकि उनका मेन काम होता है जितना ज्यादा ब्लड वो पुश कर सके. लेकिन जब हम छोटी आर्टरीज की बात करते हैं, उसमें इसका उल्टा केस होता है. उस केस में इलास्टिक टिश्यू जो होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है और स्मूथ मसल जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली. सो these proportions will gradually change as the artery branches and branches more. जैसे ये divide and subdivide होती है, वैसे वैसे इसके proportions जो होते हैं वो change होते जाते हैं. फिर arteries जो होती है, जब वो छोटे छोटी arteries बनती है, finally जाके उनको हम arterioles बोलते हैं. Arterioles are the smallest arteries. इसमें अगर tunica media की बात की जाए तो entirely smooth muscle होती है, उसमें कोई elastic tissue नहीं होता. So that means जो छोटी arteries होती है उनमें elasticity नहीं होती, लेकिन they have higher ability of contraction and dilation. अगर बात की जाए arteries की, तो arteries are having thicker walls as compared to that of veins, and because of that reason they can withstand the high pressures that we are having in our blood. So arteries जो होती है उनके walls ज्यादा thick होते हैं compared to that of veins. इस वजह से वो ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं. जब हम veins और venules की बात करते हैं, the veins are the blood vessels that return the blood back to the heart, or you can say these are those blood vessels which bring blood towards the heart. इसमें अगर देखा जाए, जो veins होती हैं वो थोड़े से thinner walled होते हैं as compared to that of arteries, but still they have the 3 layers. ठीक है, they are thinner because उनमें जो muscle और elastic tissue होता है tunica media में, that is less compared to that of arteries, and that is why it makes the wall thinner as compared to that of arteries. जो कुछ veins होती हैं उनमें, जैसे बड़ी बड़ी veins जो होती हैं बॉडी की, they consist of valves, जो कि एक unidirectional opening बनाते हैं, जिसकी वजह से जो vein होता है उसमें back flow of the blood नहीं होता, क्योंकि इस केस में जो pressures होते हैं वो arteries के मुकाबले या arteries के comparison में काफी कम होते हैं. So because of that reduced blood flows or reduced blood pressures, the veins consist of valves which will prevent back flow of the blood. So जो पीछे से blood आ रहा होता है वो आगे के blood को push करता है और valves open होते रहते हैं, लेकिन जब पीछे से push खत्म होता है हर beat के साथ, तो उस वजह से जो आगे blood चला गया वो वापस नहीं आ पाता because of the presence of these valves. उसके बाद एक और भी आता है जिनको हम capillaries कहते हैं. Capillaries are, you can say, thin walled blood vessels, जिनमें सिर्फ endothelial जो एक single epithelial lining होती है सिर्फ वही होता है, and because of that thin layer उनमें permeability बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स या गैस मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा इजीली क्रॉस कर सकते हैं कैपिलरी के वॉल को. Now we will be discussing another important part of our circulatory system, that is the heart. Heart is a roughly cone shaped, not exactly cone shaped, hollow muscular organ होता है. ये एक hollow muscular organ है. जैसे अगर आप अपनी फिस्ट को क्लोज करते हो, अगर आप मुट्ठी बंद करते हो, उसी की शेप और उसी के साइज के हिसाब से ऑलमोस्ट हमारा हार्ट होता है. इट्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 to 10 सेंटीमीटर्स की लेंथ का ये होता है. इसका जो वेट होता है दैट्स अराउंड 225 grams in case of females, and it will be around 310 grams in case of males. So slightly जो males का heart होता है, but that is slightly heavier. And when we talk about the heart, it lies in the thoracic cavity. ये thoracic cavity में होता है, lungs के बीच में होता है. It's between the two lungs, and the space is known as the mediastinum. अगर overall heart beat की बात की जाए तो 1 मिनट में हमारा heart जो होता है it beats from 60 to 80 beats per minute, and most commonly we consider 70 to 75, but the range can be 60 to 80. And अगर हम एक दिन की बात करें तो अराउंड 1 लाख बार जो होता है हमारा हार्ट बीट करता है. इट कैन बीट अराउंड 1 लाख टाइम्स पर डे. एंड जो हमारा ब्लड होता है विच इज अराउंड 5 to 6 लीटर्स, ये कंप्लीटली उसको 1000 टाइम्स
जो है सर्कुलेट करवा सकता है। मतलब जो 5 लीटर्स या 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है वो अराउंड 1000 टाइम्स जो है या 1000 बार जो होता है सर्कुलेट करता है हार्ट के थ्रू। तो इसका ये मतलब हुआ कि हार्ट जितना पंप ब्लड करता है वो अराउंड आप बोल सकते हो 5000 से 6000 लीटर्स होते हैं एक दिन में। लेकिन एक्चुअल में हमारा वॉल्यूम जो होता है वो 5 से 6 लीटर्स ही होता है, वही रीसर्कुलेट होता रहता है, वही दोबारा से हार्ट के पास आता रहता है। एंड अगर कोरोनरी आर्टरीज की बात करें, वो इसके वॉल में प्रेजेंट होती हैं जो इसको सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरीज में बहुत बार ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, वहां पर डिजीजेस हो सकते हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड इनकी जो डेथ का रेशियो रहता है इसकी वजह से वो काफी ज्यादा होता है। अराउंड 7.2 मिलियन पीपल जो होते हैं इसकी वजह से मर जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज की वजह से। अगर इस इमेज में आप देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे रिब केज के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल स्टर्नम के पीछे होता है। 2 लंग्स इसके होंगे, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, और इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। अगर देखा जाए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्ट के आसपास में होते हैं। जैसे अगर इंफीरियरली बात की जाए, दैट मींस अगर नीचे वाली साइड से देखा जाए, देयर विल बी सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन, टेंडन इज अ पर्टिकुलर टिश्यू व्हिच गिव्स कनेक्शन ऑफ मसल विद द बोन। एंड मोस्टली जो हमारा डायफ्राम है इसमें एक स्पेशल टेंडन होता है व्हिच वी कॉल एज द सेंट्रल टेंडन, जो कि इसके सेंटर पे लोकेटेड होता है और इसको कंस्ट्रिक्ट करने में काफी हेल्प करता है, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो इंफीरियरली वही डायफ्राम होता है और उसका सेंट्रल टेंडन। सुपीरियरली अगर देखा जाए, इसमें बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल आयोटा होती है, सुपीरियर वेना केवा होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, इनफैक्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो इसके ऊपर वाली साइड से होते हैं। और अगर पोस्टीरियरली बात की जाए तो पोस्टीरियरली इस पे ईसोफेगस होता है। ट्रैकिया इसके हल्का सा ऊपर की तरफ ही रहता है। इसमें लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकस होता है जो डिवाइड होते हैं वहां पर। इसमें डिसेंडिंग आयोटा होते हैं, जो आयोटा क्रॉस करके दोबारा से वापस नीचे एब्डोमेन की तरफ जाती है, उसको डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं वहां पर, तो वो होता है। साथ साथ में इंफीरियर वेना केवा जो कि हार्ट के पीछे से जो है राइट एट्रियम में ओपन होती है। और इसके अलावा इसमें थोरैसिक वर्टेब्रे भी होते हैं जो पीछे हमारे वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट होते हैं। लेटरली अगर देखा जाए तो इसमें लंग्स होते हैं, राइट साइड से राइट लंग होती है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट लंग होती है। अगर एंटीरियरली बात की जाए यानी फ्रंट साइड से अगर बात की जाए, देयर इज स्टर्नम, रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ द हार्ट, inferiorly there is a central tendon on which the apex of the heart lies, because apex is, you can say heart is actually inverted. इनका apex जो होता है वो नीचे की तरफ होता है slightly leftwards, and जो base होता है वो ऊपर की तरफ होता है slightly rightwards. Inferiorly इसमें central tendon होता है diaphragm का। सुपीरियरली इसमें बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स जैसे आयोटा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेट्रा। पोस्टीरियरली अगर देखा जाए, इन केस ऑफ पोस्टीरियर साइड विल बी हैविंग इसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकस। इसके अलावा डिसेंडिंग आयोटा विल बी हैविंग इंफीरियर वेना केवा एंड thoracic vertebra. When we talk about lateral sides, there will be lungs. Right side there will be right lung, and left side there will be left lung. And you can see in this particular image, these are the associated organs which you can see. And on the lower side there is a dotted line which shows the diaphragm, and on right and left side there are lungs, and on posterior side you can see trachea is there, esophagus is there, and also greater blood vessels are on the top side, and also they run from behind. Structure की बात की जाए, when we talk about the structure, the heart consists of 3 layers, which is pericardium, myocardium and endocardium. पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। इट इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ आवर हार्ट। इसमें लूज मेम्ब्रेनस सैक टाइप होता है ये, और इसी सैक के अंदर हमारा हार्ट रहता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरिकार्डियम, इट इज मेड अप ऑफ 2 sacs. The outer sac consists of fibrous tissue which gives strength, and the inner sac actually continues a double layer, and in that we are having 2 layers, and between those layers there is serous fluid which makes it as a serous membrane and thus prevents the heart from any type of friction or damage. And when we talk about this particular image, you can see the parts of the pericardium. In case of the image we will see on the left side there is the fibrous tissue of the pericardium. Then
in the middle there will be two layers, and between those layers we are having serous fluid, and in this serous membrane we are having parietal pericardium and visceral pericardium. Parietal is the external one, visceral is the internal one, and there is serous fluid in between which prevents any damage. Then after that there is the major portion of the heart, the muscular portion, which we call as the myocardium, and then inside that there is the lining of the heart which is known as the endocardium. So when we talk about the myocardium, myocardium जो होता है, it is composed of specialized cardiac muscle which is found in the heart. तो इसमें जो होता है, जैसे हमारे पास मसल्स की बात करें तो हम कहते हैं देयर इज स्केलेटल मसल, देयर इज स्मूथ मसल एंड देयर इज कार्डियक मसल. सो इन केस ऑफ हार्ट वी विल बी हैविंग कार्डियक मसल, एंड दिस कार्डियक मसल इज अंडर द involuntary control of the brain, and we cannot control it, so that's why heart rate is not under our conscious control. It is you can say under the involuntary control. And when we talk about every fiber of this muscle or every cell of this muscle, these are nucleated cells. There can be one or more branches of each cell, and the end of the cell and their branches are very in very close contact with the end and branches of the adjacent cell. So एक cell जो होती है उसके branches और end जो होते हैं वो दूसरे cell के branches और ends के साथ close contact में होते हैं, और इस तरीके से जो है ये एक continuous muscular structure बनाते हैं. Then there is the third layer which is known as the endocardium. This forms the lining of the myocardium, and we can say ये अंदर की साइड से हार्ट को जो है एक कवरिंग बना के देता है. It is thin, it is smooth, and we can say it is a type of membrane which will permit smooth flow of the blood inside, and this will not actually restrict any you can say blood flow, or it will not damage any blood cells. So that's why ये थोड़ा glistering type membrane होता है, and it consists of flattened epithelial cells. अगर इसके cells की बात की जाए तो इसमें flattened epithelial cells होते हैं which actually are continuous with the endothelium of the blood vessels. तो blood vessels की अंदर की lining के साथ हार्ट की अंदर की लाइनिंग जो होती है वो कंप्लीटली उसके साथ कंटिन्यू करती है, मर्ज करती है, जिसकी वजह से वहां पर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर फील नहीं होता या उसमें कोई डिफरेंशिएशन फील नहीं होती. तो जो 4 चैम्बर्स हार्ट के होते हैं, अगर एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं अभी राइट नाउ हार्ट की, तो उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं वॉल्स के बाद. When we talk about the chambers, there are 4 chambers. We call one chamber as atrium, and there are 2 atrium actually, so we call them as atria. So atria is the plural and atrium is the singular form. The atria जो होते हैं ये thin walled chambers होते हैं as compared to that of ventricles, and they actually receive the blood. So the right atrium will receive deoxygenated blood, while as the left atrium will receive oxygenated blood, and they are separated by the septum. Okay, so there is, you can say, intraarterial septum, we call that as, or you can say heart is having a septum in the middle, so that will divide the 2 atria from one another. And when we talk about the ventricles, these are the lower chambers of the heart. So जो 4 chambers में नीचे वाले 2 chambers होते हैं उनको हम ventricles कहते हैं. एक को ventricle, 2 को ventricles कहेंगे. ये mainly you can say thick walled होते हैं. इनमें muscular portion जो होता है वो ज्यादा होता है, and that's why ventricles are, you can say, more efficient in contraction as compared to that of atria, because of the presence of bulk of mass you can say of the muscular tissue. Left ventricle जो होता है वो slightly larger होता है as compared to that of right ventricle. You can say it is around 2/3 larger than the right ventricle. And when we talk about the right ventricle, it is slightly thin walled, and you can say a slightly oblong type, and you can say it acts as a pocket, we can say, which is attached to the left ventricle. So main जो काम रहता है इन सारे ventricles में, वैसे तो सारे equally अपना अपना काम करते हैं, but the major important function is about the left ventricle. So left ventricle is responsible for pushing the blood into the aorta, and that's why we can say left ventricle is responsible for providing blood circulation to all tissues of our body. There are 4 valves present in our heart that we just discussed when I was saying about the blood flow through the heart. So there is the tricuspid valve which separates the right atrium from right ventricle. There is the bicuspid valve which we also know as the mitral valve. It separates the left atrium from the left ventricle. There is pulmonary valve which is and
aortic valve. These are also known as semilunar valves. Pulmonary valve actually is present between the pulmonary artery and the right ventricle, and when we talk about the aortic valve, it is present between the left ventricle and the aorta. So the main function of these valves is to prevent the backflow of the blood, because they are actually unidirectional valves. So because of that reason, the blood will not actually flow back through them. So in this particular image, you can see there are different, you can say, arrows which show you the blood flow. But on the left side of this image, you can see how the valve opens and the blood flows into it. And then if the blood tries to go back, the valve will get closed, and because of that reason, there will be no backflow of the blood. Now we will talk about the blood supply to the heart, how the blood is supplied to the heart itself. हार्ट की मसल को या हार्ट के वॉल को ब्लड कैसे मिलता है. सो देयर इज आर्टेरियल सप्लाई बाय द कोरोनरी आर्टरीज. तो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट को. देयर आर टू मेजर कोरोनरी आर्टरीज, वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड अनदर वन इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि जैसे ही आयोटा में ब्लड जाता है, व्हेन वी पास द aortic valve, immediately after that there will be the branching of the right and the left, you can say, coronary arteries just after the aortic valve. Coronary arteries जो होती है, they receive about the 5% of the total blood that is pumped by the heart. So for example, if the blood is pumped as, for example, 100 ml, so 5 ml will go into the coronary arteries. Although the heart comprises of a small proportion of the body weight, but because of its function and continuous pumping, it will require more blood. So that's why we will give 5% of the total circulation to the coronary arteries. So heart जो होता है, ये वैसे तो बॉडी की साइज के हिसाब से बहुत छोटा होता है, बट क्योंकि इसका कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इज व्हाई आर्टीरियल सप्लाई जो होती है इसमें अराउंड 5% होता है वो कोरोनरी आर्टरीज में चला जाता है. वेनस ड्रेनेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वेन्स जो कि ब्लड को लेके आती हैं, उनको हम कहते हैं थिबेशियन वेन्स. सो थिबेशियन वेन्स जो होती हैं, दीज आर द वेन्स व्हिच ब्रिंग बैक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द हार्ट. और ये जो थिबेशियन वेन्स होती हैं, दे एक्चुअली ओपन इन ऑल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. So that's why there is slight mixing of the, you can say, deoxygenated blood in the oxygenated blood in the left side. So इस पे हमारा एक वीडियो भी आया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो ओवरऑल ऑक्सीजन का सैचुरेशन रहता है, बॉडी का नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो कम क्यों होता है रादर देन 100%, ये 97-98% क्यों रहता है. तो उसमें द फैक्ट इज थिबेशियन वेन्स. एंड ऑल्सो उसमें एक और फैक्ट मैंने मेंशन किया है, आप चैनल पे जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. हार्ट जो होता है इसमें एक इंट्रिंसिक सिस्टम होता है, जहां पर आप बोल सकते हो कि हार्ट के अंदर ही इंपल्सेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि कार्डियक मसल में ट्रैवल करते हैं, और इसमें ब्रेन की सप्लाई की जरूरत नहीं होती. हार्ट में एक पर्टिकुलर मास ऑफ या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम SA नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड, which actually are, you can say, electrically imbalanced cells. तो उनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स निकलते रहते हैं क्योंकि उनमें पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन एंड देन अगेन रीपोलराइजेशन होती रहती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली चार्ज को जो है बाहर फेंकते रहते हैं, और वो चार्ज जो होता है एट्रिया में फैल जाता है, और उसकी वजह से पूरे जो दोनों एट्रिया, राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम जो होता है, वो दोनों एट्रिया जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो देयर इज स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स इन द मायोकार्डियम which is known as SA node, and they initiate and conduct the impulse, which is actually coordinated and synchronized, and it actually travels in the heart muscle, and that is why we can say that the mechanism of conducting system of this brain is actually intrinsic. So इस इमेज में आप देख सकते हो जो साइनोएट्रियल नोड है, वहां से अलग अलग डायरेक्शन में इंपल्सेस निकलते हैं जो पूरे एट्रिया में फैलते हैं. देन आफ्टर दैट
एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, एवी नोड जिसको कहा जाता है, इस इमेज में आप देख सकते हो। वो एवी नोड जो होता है वो इन इंपल्सेस को रिसीव करता है, और एवी नोड जो होता है वो इनको थोड़ा सा एम्पलीफाई करवाता है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद वो उसको जो सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके अंदर जो है ब्रांचेस होती है, जिस इस वी कैन से वी कॉल दैट एज बंडल ऑफ हिस। सो बंडल ऑफ हिस होता है वहां पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी उसको कहा जाता है। और उस उन ब्रांचेस में जो होता है ये सिग्नल ट्रैवल करता है, फिर फाइनली जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड पहुंचता है इनका जो नर्व एंडिंग्स होती है, वी कॉल देम एज पुरकिंजी फाइबर्स, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और इस पुरकिंजी फाइबर्स में जब सिग्नल पहुंचेगा तो यहाँ से जो इंपल्स है वो हार्ट की मसल में जाता है, और हार्ट की मसल जो है वो कंट्रैक्ट करने लगती है, और इस तरीके से जो है हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट करते हैं। सो सबसे पहले वी आर हैविंग द साइनोएट्रियल नोड, व्हिच इज अ स्मॉल mass of specialized cells which are present in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava। ऐसे नोड जो होता है ये कंटिन्यूअसली सिग्नल्स छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से वी कैन कॉल इट एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, because it normally initiates impulses more rapidly than other group of neuromuscular cells. Then we are having atrioventricular node or the AV node, which is also a small mass of neuromuscular tissue which is situated on the wall of the atrial septum near the atrioventricular valves, जहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और जो एट्रिया का सेप्टम होता है उस कॉर्नर में मोस्टली पाया जाता है। नॉर्मली जो AV नोड होता है इट इज स्टिमुलेटेड by the impulses from the SA node, so it will not actually create its own impulses commonly, in case of normal situations it will actually receive the impulses from SA node, and it will then actually initiate its own impulses along with that, and it will amplify and it will synchronize its impulses with that। ये उसके साथ अपने सिग्नल्स को मिलाता है, अपने impulses को मिलाता है, और उन impulses को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसके बाद जो होता है ये वहां पर उनको आगे भेजता है। एंड इसकी वजह से जो SA नोड से आने वाला सिग्नल स्लो हो गया होता है वो और फास्ट होता है, और वो आगे जाके एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में जाता है, जिसको हम एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड मास ऑफ फाइबर्स होता है जो कि ओरिजिनेट होते हैं इसी एवी नोड से, और ये क्रॉस करते हैं, ये जाते हैं सेप्टम के बीच में से। ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसके थ्रू रन करता है, फ्रॉम अपर एंड टू द लोअर एंड, उस डायरेक्शन में जाता है। और उसमें जाते हुए आगे जाके इसमें ब्रांचेस बनती है, एक राइट ब्रांच बनती है, दूसरा लेफ्ट ब्रांच। तो एक को हम राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं। देन आगे जाके जो एपेक्स होता है हार्ट का, वहां पर एक कर्व लेते हैं, एक राइट साइड की तरफ जाएगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, एंड फाइनली इसमें फाइन एंड्स होते हैं, छोटे छोटे एंड्स बनते हैं, नर्व एंडिंग्स बनती है। वी कॉल देम एज पुरकिंजी फाइबर्स, एंड दोज पुरकिंजी फाइबर्स will actually be responsible for transmitting the signal into the muscles of, or कैसे muscle cells of the heart। और इसमें जब पुरकिंजी फाइबर्स तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो वो इंपल्स जो है फिर वेंट्रिकल्स में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नर्व सप्लाई टू द हार्ट। अब हमने जैसे डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जो हार्ट होता है इसमें इंट्रिंसिक इंपल्सेस बनते हैं। तो इंट्रिंसिक इंपल्सेस का मतलब हो गया कि इसमें जो इंपल्सेस बनते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं, इसको ब्रेन से सिग्नल्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसमें जो ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे मेडुला से निकलता है, वो इफेक्ट कर सकता है हार्ट की फंक्शन को। इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से जो हमारा हार्ट है उसके पास पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स की सप्लाई भी आती है। सो वी कैन से फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन, ओके, जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं या सिग्नल वहां तक पहुंचते हैं, तो इसके लिए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सप्लाई, दोनों सप्लाई जो हमारे हार्ट को मिल सकती है। एंड द नर्व विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ द हार्ट इज एक्चुअली वैगस नर्व। वैगस नर्व जो होती है ये मेनली पैरासिम्पैथेटिक आप बोल सकते हैं सप्लाई करती है, और इसमें अगर देखा जाए एसए नोड, एवी नोड एंड एट्रियल मसल जो होती है उस पे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होती है वो वैगस नर्व से आती है। और इसकी स्टिमुलेशन की वजह से जब वैगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करेगी, इसकी वजह से वो रिड्यूस करता है यू कैन से रेट ऑफ द इंपल्स, जिसकी वजह से ओवरऑल
जो हार्ट रेट होती है और जो फोर्स होता है कंट्रैक्शन का वो कम हो जाता है. And when we talk about the sympathetic nerve supply you can the SA node, the AV nodes and the myocardium of the atria as well as the ventricle. तो SA नोड को भी सप्लाई मिलती है, AV नोड को भी सप्लाई मिलती है और मायोकार्डियम को भी सप्लाई मिलती है. और जब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड उसकी वजह से जो हार्ट बीट करता है वो ज्यादा स्ट्रांगली बीट करेगा और कंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी. Now, what are the factors that can actually affect the heart rate? इसमें आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम जैसे अभी हमने पढ़ा वैगस नर्व, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाईज जो होती हैं उसकी वजह से जो होती है हमारी हार्ट रेट में चेंजेस आती हैं. सर्कुलेटिंग केमिकल्स की वजह से भी आती है, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारी हार्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन एक्सेट्रा. इसी तरीके से पोजिशन, किस पोजिशन में आप बैठे हो, जैसे वेदर यू आर इन सुपाइन पोजिशन, यू आर इन सिटिंग पोजिशन और यू आर इन स्टैंडिंग पोजिशन. इसके अलावा एक्सरसाइज, इफ यू आर रेस्टिंग देन हार्ट रेट विल बी स्लाइटली स्लोअर एंड if you are doing exercise then the heart rate will increase. Also emotional states as well, whether you are happy, whether you are sad, whether you are normal, that will also affect the heart rate. इसके अलावा gender will also affect the heart rate and you can say in case of males the heart rate is slightly different as compared to that of females. And also temperature will have an impact on the heart rate. So temperature can cause changes in heart rate as well. For example, in case of increased temperatures mostly our heart rate increases, so there can be effects on that as well. That was an idea about the anatomy of the cardiovascular system and that will be it for today's lecture. And when we will continue this series we will be discussing about the physiology and the related terms which are related to the cardiovascular system, right? The blood pressure, the pulse, etc. And that will be discussed in upcoming lectures. Thank you so much. Stay tuned. Please like, share and subscribe if you find the videos helpful. Thank you so much. Have a good day.